Good morning, dear student. Okay, thank you. In previous lecture, we discussed chapter number second, social infrastructure facilities, its meaning, its importance, and various programs and policy announced by the government of India for the improvement of social infrastructure facility, so that it will help for promoting the growth and development of our country. That we already discussed in previous lecture. And today's lecture, we are going to start the new chapter, that is chapter number 3, and the name of this 3 chapter, Sustainable Development Goals and Policy Measures. So let's start our today's session with the new chapter, that is the Sustainable Development Goals and Policy Measures. We start our today's lecture from transferring our word. Dear student, what we are going to study in today's lecture? What is our learning objective? Number 1, that is 3.1. Why it is 3.1? Because of chapter number 3, and the first point from the chapter number 3 is 3.1, that is economic growth and economic development. Second, sustainable development goals, and the third one is recent sustainable development initiatives announced by the government of India in Indian economy to promote sustainable development goal. Let's start with the introduction. Student, there was Sustainable Development Summit in 2015, which was held in USA. In this summit, most of the countries in the world were presented, and in that summit it was decided to have a agenda including sustainable development goals, and this sustainable development goal will become as an integral part of the development strategy of each nation in the world, and this will be the guiding principle for achieving growth and development for the country in the world. Dear student, 2015 में USA में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ था. समिट मींस कॉन्फ्रेंस. 2015 में USA में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था. उस कॉन्फ्रेंस पे वर्ल्ड के सभी भी मोस्ट ऑफ ऑल कंट्री प्रेजेंट थे. उस समिट में क्या डिसाइड किया था? उस समिट में 2030 एजेंडा डिक्लेयर किया था. उस एजेंडा में 17 गोल इंक्लूड थे, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा गया है, और दूसरे वर्ड में उसे ग्लोबल गोल भी कहा जाता है. ये वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है, सभी कंट्री को अचीव करना है. कब तक? 2030 तक. इसलिए ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये हर एक कंट्री का जो पॉलिसी होता है, स्ट्रेटेजी होता है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अचीव करने का, उसका एक पार्ट होना चाहिए, उसका एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए. ऐसा 2015 में जो समिट हुआ था यूएसए में, उधर डिसाइड किया. ओके, सो इन शॉर्ट आई टेल यू, 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ था. उस समिट में वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ कंट्री प्रेजेंट थे. उसी समिट में 2030 एजेंडा डिक्लेयर किया था. उस एजेंडा में 17 गोल अचीव थे. मतलब 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर एक कंट्री को 2030 तक अचीव करना है. और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर एक कंट्री का जो पॉलिसी होगा, स्ट्रेटेजी होगा, उसका एक पार्ट होगा. और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल होगा, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अचीव करने के. क्योंकि हर एक कंट्री का मेन एम ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उस कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रमोट करना. और हर एक कंट्री को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए वेरियस पॉलिसी और प्रोग्राम यूज करता है, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उस पॉलिसी का, प्रोग्राम का एक पार्ट होना चाहिए. ऐसा 2015 में डिक्लेयर किया है.
Okay, so this was the introduction. Now let's start our first point, that is economic growth and economic development. In previous lecture, I already told you about the economic growth and economic development. So little bit you are familiar with economic growth and economic development, because while discussing about the social infrastructure facility in Indian economy, I already told you what is economic growth and economic development. But in overall, I tell you, because here we are going to discuss in detail the difference between economic growth and economic development. क्योंकि यहाँ पर हमें डिटेल में स्टडी करना है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या डिफरेंट होता है. So see, the terms economic growth and economic development sound very similar. क्या इंडिकेट करता है, ऐसा एक्सप्रेस किया जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर वेरी सिमिलर, आर वेरी कनेक्टेड टू ईच अदर. Leave it. It is also said that economic growth means economic development means economic growth. It is also said. ऐसे भी कहा जाता है. But there is a sound different between economic growth and economic development. Because economic growth refers to only increase in national income or GDP, and economic development refers to growth plus changes. मतलब जब किसी कंट्री का नेशनल इनकम इंक्रीज होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया का जीडीपी 7% से 9% हो गया है, तो उसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है. ओके, जब इंडिया का जीडीपी 9% प्लस इंडियन इकोनॉमी के जो डिफरेंट और वेरियस प्रॉब्लम्स है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम इनइक्वालिटी, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, lack of drinking water facilities, lack of infrastructure facilities, lack of human capital, productive human capital, ये जो प्रॉब्लम्स है इंडियन इकोनॉमी के, ये जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक है, ये सब में जब चेंज होता है तो उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू ग्रोथ प्लस चेंजेस, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू ओनली इंक्रीजिंग नेशनल इनकम, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू increasing national income plus changes in various institutional और social institutional changes. ये सब social institutional changes ही है. पॉवर्टी में कम होना, इनइक्वालिटी में कम होना, अनएम्प्लॉयमेंट में कम होना, ये सब चेंज होता है, तब उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है. ओके, सो इन शॉर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स ओनली इंक्रीज इन नेशनल इनकम, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स growth plus changes in short. Now let's see what is the basic difference between economic growth and economic development in details. See, the first is meaning definition. Economic growth refers to increase in the monetary growth of a nation in a particular period. That is, economic growth is concerned only the monetary growth of a nation in a given year. मतलब जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल 2019-20 में इंडिया का जो जीडीपी था nearby 6 to 8%, consider करो 7%, that is monetary growth. मतलब जब किसी नेशन में किसी ईयर में ज्यादा मॉनेटरी ग्रोथ होता है तो उसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है. फॉर एग्जांपल 2019-20 में इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 8%. That is economic growth. Economic development, it refers to the overall development of the quality of life in a nation, which includes economic growth. That is economic growth plus overall development of the quality of life in a nation. Quality of life किसका? All people of the nation. सब लोगों का जो लाइफ होता है उसमें इंप्रूवमेंट, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उसमें इंप्रूवमेंट. और क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट कब होता है? जो बेसिक प्रॉब्लम मैंने बताया, जो इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है एट इंटरनेशनल लेवल पर, पॉवर्टी,
inequality, unemployment, low infrastructure facilities. इसमें जब इम्प्रूवमेंट होगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द नेशन विल इम्प्रूव ना. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इम्प्रूवमेंट. The span of concept, it is narrow concept than economic development. जो इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है वो नैरो है. Why it is narrow? Because it focused only national income. And the economic development, it is a broad concept than economic growth. Why broad? Because it include national income plus it also focused on other things also. नेशनल इनकम के साथ साथ जो अदर थिंग्स है उसके ऊपर भी फोकस करता है, उसको भी कंसीडर करता है. कैसे कंसीडर करता है? क्योंकि ग्रोथ प्लस चेंजेस के ऊपर ध्यान देता है. ग्रोथ प्लस चेंजेस. अभी ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन नेशनल, मतलब अगर हमारे कंट्री का नेशनल इनकम इंक्रीज हो गया, ओके, प्लस जो वेरियस प्रॉब्लम्स है, मैंने जो आपको पता है वो वेरियस प्रॉब्लम, उसमें अगर इंप्रूवमेंट हो गया, चेंज हो गया, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा ना. मतलब डेवलपमेंट नेशनल इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ जो वेरियस प्रॉब्लम्स है उसमें इंप्रूवमेंट करने के ऊपर भी फोकस करता है, इसलिए ब्रॉड कॉन्सेप्ट. सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ नैरो कॉन्सेप्ट. नैरो इन द सेंस दैट इज संकुचित कॉन्सेप्ट, बहुत कम है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही चीज कंसीडर करता है, हाउ टू इंक्रीज नेशनल इनकम, हाउ टू इंक्रीज जीडीपी. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये फोकस करता है नेशनल इनकम प्लस अदर चेंजेस इन द कंट्री. दैट्स व्हाई इट इज ब्रॉड कॉन्सेप्ट. इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस. ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस, क्योंकि ये सिर्फ एक ईयर में नेशनल इनकम को कंसीडर करता है, और नेशनल इनकम को हमेशा 1 ईयर में ही रिफ्लेक्ट किया जाता है ना. क्योंकि नेशनल इनकम का मीनिंग क्या है? इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री गिवन अ ईयर. एक ईयर में एक कंट्री ने जितने गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया है उसका मार्केट वैल्यू मतलब नेशनल इनकम, मतलब एक ही ईयर में. दैट इज शॉर्ट टर्म प्रोसेस. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस. हाउ इट इज लॉन्ग टर्म प्रोसेस? जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस कैसे है? क्योंकि किसी कंट्री का नेशनल इनकम जीडीपी इंक्रीज जो होगा, लेकिन उसके जो प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और अदर प्रॉब्लम्स, ये एक ईयर में फिनिश नहीं होंगे, एक ईयर में कम नहीं होगा, उसमें एक ईयर में इंप्रूवमेंट नहीं होगा, है ना. फॉर एग्जांपल, मैंने इसके पहले भी एग्जांपल दिया है. When I was in graduation or in post graduation also, both, my teacher used to teach me the problems or the characteristic of Indian economy. That was including poverty, inequality, and unemployment. Now I am teaching to you that the problems of Indian economy, poverty, income inequality, चेंज हुआ. अभी 5 साल 5-6 ईयर हो गया है मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद, 7-8 ईयर हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद 8 साल हो गए, है ना, 7 साल हो गए, कंसीडर करो 6 साल हो गए. पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, रिड्यूस हो गया नहीं. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोसेस, क्योंकि उसको फिनिश करने के लिए, उसको कम करने के लिए टाइम रिक्वायरमेंट होता है. Therefore, economic growth is a short-term process, and the economic development is a long-term process. Another difference between economic growth and economic development, that is, economic growth is a quantitative concept, and economic development is both, that is, quantitative as well as qualitative. Why economic growth is a quantitative concept, or why economic growth focus only on quantitative growth? That is only increase in national income.
7%, 8%, 9%. That is quantity, na? Or economic development, quantity, 8% growth plus different changes, so that it will help to improve the quality of life of the people of the nation. That is, so economic development is both quantitative and qualitative. Then growth is a features of developed economy, and economic development is the features of developing economies. ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये डेवलप्ड कंट्री का फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है. एंड if you see the separate book of economic growth and development, the first definition on the first page given economic growth, the difference between economic growth and economic development, and the meaning of economic growth and economic development. That is, economic growth refers to the problems of developing countries, developed countries, and economic development refers to the problems of developing countries. That is, economic growth is a problem of developed countries. America, Japan, China, that is, these are the developed countries. तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये किसका प्रॉब्लम है? डेवलप्ड कंट्रीज का, अमेरिका, जापान, उनका. क्यों उनका प्रॉब्लम है? उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑलरेडी अचीव किया है. उनके सामने प्रॉब्लम कौन सा है? उन्होंने जो इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव किया है, मतलब उन्होंने जो जीडीपी अचीव किया है, जो उनका हायर नेशनल इनकम जीडीपी है, उनको सिर्फ वही सस्टेन रखना है. That's why this economic growth is feature, characteristic, or the problem of developed countries. And economic development is the problems of developing countries like India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh. ये कंट्री का प्रॉब्लम. क्यों? क्योंकि ये कंट्री को उनका नेशनल इनकम इंक्रीज करने के साथ साथ क्या करना है, और जो उनके प्रॉब्लम्स है उनमें भी इंप्रूवमेंट करना है. That's why it is a problems or features or characteristic of developing countries. Okay. Then another importance, that is, it is an automatic process that may or may not require intervention from the government. That is, for the economic growth, government does not require any intervention for this promotion. मतलब अगर किसी कंट्री का जीडीपी या नेशनल इनकम प्रमोट करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी नहीं होता है. कैसे नहीं होता मालूम है? क्योंकि उस कंट्री का जो नेशनल इनकम होता है, इंडिया का पकड़ो या कौन से भी कंट्री का पकड़ो, एनी पर्टिकुलर कंट्री का पकड़ो, किसी भी कंट्री का जो नेशनल इनकम होता है वो नेशनल उस कंट्री में जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं उसके कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड होता है ना. सपोज इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया का जो वेरियस सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, कॉमर्स, ट्रेड, ये जो वेरियस सेक्टर्स है, अगर उनका परफॉर्मेंस बेटर रहा, डेफिनेटली हमारे कंट्री का जो ग्रोथ रेट होगा, जीडीपी होगा, वो हायर लेवल पर होगा. और आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं मैं. जिस किसी ईयर में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट कम होता है, उस ईयर में इंडिया का ओवरऑल जीडीपी कम होता है. और उसी ईयर में इंडियन एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट और प्रोडक्शन कम होता है जिस ईयर में रेनी सीजन कम होता है. क्योंकि हमारा इंडिया का एग्रीकल्चर पूरा भगवान के ऊपर डिपेंड है. अगर भगवान बरसा तो हमारा एग्रीकल्चर बरसता है, अदरवाइज ऐसे हाथ फैलने पड़ते ऊपर. ऐसा जापान में नहीं. इंडिया में लैंड ज्यादा है ना, लेकिन उसको कल्टीवेट करने के लिए जो फैसिलिटीज अवेलेबल है वो प्रॉपर अवेलेबल नहीं. जापान में लैंड कम है, लेकिन वो लैंड कल्टीवेट करने के लिए जो फैसिलिटी उन्होंने मेंटेन किया है, that's why their agriculture sector is very forward than other countries. That I want to say here, जिस ईयर में रेनी सीजन बेटर नहीं होता है उस ईयर एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन और ग्रोथ रेट कम होता है, और उसी ईयर
इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट होता है वो भी कम होता है। इसलिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ग्रोथ रेट प्रमोट करनी, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करनी। बट to promote economic development, government intervention is must. अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करना है तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का इंटरफेयर मस्ट रिक्वायर। क्यों? क्योंकि रोड फैसिलिटीज, स्ट्रीट, गार्डन, सैनिटाइजेशन, ड्रेनेज सिस्टम, हॉस्पिटल्स, पॉवर्टी रिडक्शन, इनकम इनइक्वालिटी रिडक्शन, ये कोई अंबानी बाबा या टाटा बाबा अवेलेबल करके नहीं देगा। किसको करना पड़ेगा? ये गवर्नमेंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स चेंजेस इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। इसलिए गवर्नमेंट का अगर उसमें इंप्रूवमेंट करना है, चेंजेस करना है, तो गवर्नमेंट का इंटरवेयर मस्ट। ओके, सो इन शॉर्ट, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, no government intervention is required. To promote economic development, government intervention is must. Then from economic growth, how country expect or what country expect, and from economic development, what country expect. वर्ल्ड में जो कंट्रीज है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी, जितने भी कंट्रीज है वर्ल्ड में, वो कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। दैट इज the country expect quantitative changes from economic growth and quantitative as well as qualitative changes from economic development. That is, जो डेवलप्ड कंट्री का एक्सपेक्टेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ से, उनका क्या एक्सपेक्टेशन है? उनका जो जीडीपी है 10%, वो 10% से 50%, 15% और 20% करना, ये उनका एक्सपेक्टेशन। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उससे डेवलपिंग कंट्रीज का क्या एक्सपेक्टेशन है? उनका नेशनल इनकम, जीडीपी 10% से 15% करना, प्लस उनके जो प्रॉब्लम्स है उनमें इंप्रूवमेंट लाना। दैट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड हियर आई हैव गिवन यू द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है इसका, economic growth and economic development. Now see the example. What is the difference between economic growth and economic development? The example here, see, GDP GNP. It is an example of economic growth. Why? Because economic growth refers to only increase in GDP or GNP. And you are aware about what is GDP and GNP. Our national income is always expressed in GDP or GNP, but both are different, GDP and GNP. GDP is only include on whatever the transaction conducted in our country, within a country. Whatever we obtain income from foreign country, it is not included in GDP. If we include in GDP, we will get GNP. दोनों में बेसिक डिफरेंस, जीडीपी और जीएनपी थोड़ा सा डिफरेंट, एक ही पॉइंट है। कौन सा डिफरेंस है? जीडीपी क्या रेफर करता है? दैट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी और विद इन द कंट्री गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम और गिवन अ ईयर। मतलब एक ईयर में इंडियन इकोनॉमी के अंदर जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है, उसी ईयर में मार्केट में जो प्राइस अवेलेबल होगा, उस प्राइस को सेल करने के बाद जो पैसा मिलेगा गवर्नमेंट को, जो इनकम मिलेगा गवर्नमेंट को, दैट इज जीडीपी। ओके, लेकिन ये हमारे कंट्री के अंदर का ट्रांजैक्शन से हमें कंट्री को इनकम मिला है, उसके साथ साथ हमारे कंट्री का फॉरेन कंट्री के साथ भी ट्रांजैक्शन होता है, एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है ना। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया ने फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट किया है, तो उससे क्या मिलेगा? इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन गवर्नमेंट को फॉरेन कंट्री से इनकम मिलेगा। तो हमें फॉरेन कंट्री से जो भी इनकम मिला है एक्सपोर्ट द्वारा,
कोई इनकम अगर हमने जीडीपी में ऐड किया तब हमें मिलता है जीएनपी. इट्स वेरी इजी. सो वी गॉट जीएनपी व्हेन वी ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्री विद द जीडीपी. सो हमने अगर फॉरेन कंट्री से जो भी इनकम मिला है तो अगर जीडीपी में ऐड किया तो हमें मिलता है जीएनपी, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये एग्जांपल है इकोनॉमिक ग्रोथ का. कैसे एग्जांपल है इकोनॉमिक ग्रोथ का? How it is an example of economic growth? Because economic growth is concerned or focus only quantitative changes, and GDP and GNP is concerned only quantity. 10%, 11%, 15% growth rate, or 10% GDP, 8% GDP, 15% GDP. So it is the example of economic growth. Here, HDI, per capita income and industrial development. This is an example of economic development. How this is an example of economic development? That is HDI, Human Development Index. This HDI, Human Development Index, how is the example of economic development? Because this considered the overall development of the human in the country. This HDI first of all was published by UNDP, United Nations Development Program, in 1999. Since UNDP publishing HDI report of every nation in the world, not only India, तब से 1999 से UNDP हर एक कंट्री के HDI का रिपोर्ट पब्लिश करता है. That is Human Development Index. क्या होता है? This HDI first of all was developed in Indian economy by 3 economists. Actually, it was developed by Indian economics, that is Amartya Sen. जो HDI कॉन्सेप्ट जो है वो अमर्त्य सेन ने डेवलप किया है और उसको ये कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने उसको नोबेल प्राइज भी दिया है, अमर्त्य सेन. और जो अदर 2 इकोनॉमिक्स थे उसमें से वन मोर इंडियन इकोनॉमिक्स थे, उसका नाम है मेघानंद देसाई. उस मेघानंद देसाई ने अमर्त्य सेन को ये कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए हेल्प किया है. उसके साथ साथ एक पाकिस्तान का इकोनॉमिक्स थे महबूब लक, उसने भी ये दोनों इकोनॉमिक्स को हेल्प किया है एचडीआई का कॉन्सेप्ट डेवलप करने में. बट बेसिकली Amartya Sen developed this concept and these 2 economics helped to Amartya Sen for developing this HDI. Now, what is this HDI? HDI, it is an average achievement in 3 dimensions. HDI क्या इंडिकेट करता है? That is the average dimension, average achievement in 3 dimensions. What are these 3 dimensions? Number 1, that is education index, life expectancy, and the per capita income, that is standard of living. ये 3 डायमेंशन, मतलब ये तीनों भी डायमेंशन में जब इंप्रूवमेंट होता है तो इंडिकेट करता है उस कंट्री के ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट. और ये यूएनडीपी हर एक ईयर में पब्लिश करता है. फॉर एग्जांपल, इसका पहला जो यूएनडीपी रिपोर्ट पब्लिश किया यूएनडीपी में 147 कंट्रीज का, उस 107 कंट्रीज में इंडिया स्टूड 132 रैंक अबाउट एचडीआई वैल्यू. एचडीआई का वैल्यू निकाला जाता है, जो 3 डायमेंशन है उस डायमेंशन, 3 ही डायमेंशन का सेपरेटली वैल्यू निकाला जाता है. उस 3 ही डायमेंशन को 3 से डिवाइड किया जाता है. जो वैल्यू आता है उस वैल्यू के आधार पर उस कंट्री का वर्ल्ड में रैंक डिसाइड किया जाता है. वो कंट्री फर्स्ट रैंक का है वर्ल्ड में, या थर्ड रैंक का है, या फोर्थ रैंक का है. और इंडिया का रैंक कितना है? 132 अमंग 147 कंट्रीज. और पाकिस्तान का रैंक है 147. पाकिस्तान का रैंक था 147, इंडिया का रैंक था 132. और फर्स्ट रैंक है नॉर्वे. नॉर्वे का एक फर्स्ट रैंक. अभी नॉर्वे का फर्स्ट रैंक है, मतलब वो क्या इंडिकेट करता है? दैट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री. उसके कंट्री में, हमारे कंट्री में जैसे प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट अचीव किया है उस कंट्री.
ऑब्वियसली जब एजुकेशन अवेलेबल होगा, जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगा, मतलब लोगों को खाने के लिए भी ज़्यादा बेटर क्वालिटी अवेलेबल होता है फूड ग्रेन। और तीसरा पर कैपिटा इनकम, अगर इनकम अवेलेबल होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव, और इससे ओवरऑल उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाए। इसलिए ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द नेशन इंडिकेट करता है। देन पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम अगर हमारे कंट्री की per capita income means the per head income or per person income, that is per capita income. How it is obtained? If you divided our total national income by the total population, we get per capita income, that is per person income. इंडिया का जितना भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से हर एक पर्सन का इनकम मतलब पर कैपिटा इनकम, and this per capita income is very high of American people, nearby 25 to 26,000 dollar as compared to Indian people. Indian people is very less per capita, is having very less per capita income. Therefore, our standard of living, if we compare our standard of living with the American people's standard of living, that is per capita income. And industrial development, जिस कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, ऑब्वियसली उस कंट्री का मॉडर्नाइजेशन होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज किया जाती है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो उससे उस कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो डियर स्टूडेंट, I think we are having only 2 minutes now. Immediately, only having 1 minute. Immediately, we are having another lecture at 9:45. Okay, we will let meet at 9:45. Now we stop. We are having 1 minute. If you have any doubt, you can ask me.